Good evening, everybody. Welcome to the Paradigm Shift. Today, we're going to be in conversation with Mr. Rahul, the founder of Bachpan Save the Innocence. Hi, everyone. So, we're waiting for Rahul to join in. Hey, everybody. Hello, Dipshika, am I audible? Oh, You're audible. Now you're visible also. I couldn't see you at that point. yeah, I didn't. I forgot to switch on my front camera. Okay. Hi, good evening, Rahul. How are you? Good evening. Good evening. I'm good, Dipshika. Thank you so much for having me. Okay, just before we begin, I want to read a little bit about you. Mr. Rahul is the founder of Bachpan Save the Innocence. He has been working with kids for the past 4 years. He has delivered workshops to children, youth, parents, teachers, and has sensitized more than 8,200 individuals in the domain of child sexual abuse prevention. That's amazing. He dreams to have a future where everyone can raise a voice against child abuse. I wish you all the best, Rahul, and I hope in the future Thank we you. don't have any kind of abuse. Yeah, someday, definitely. Yes. Absolutely. Okay, so Rahul, I want to ask about your bachpan. You have you're at a very young age, you have started being this crusader against child abuse. What are the values, or what are the memories, or what are some things that you have learned from Aapke Bachpan Se? What have you carried over? So tell us a little bit about your early life. Right. So, I wouldn't say any incident, that might be a reason for starting Bachpan. But I could definitely say that there were certain qualities जो मुझे लगता है कि ऐसे cause को start करने में they might be a catalyst. So I was a very emotional child from the very beginning. बहुत ही emotional था चीज़ों को लेके और जिद्दी भी था. तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि कुछ गलत देखा तो रूम में जाके रोने लग गए, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है. Then for 2 or 3 days you were very sad about. I was that kind of person. But at that Right. age, you don't know what to do about it. So I think as I grew up, having different experiences in different fields, like having been worked in child begging or having been part of certain ventures of menstrual hygiene and sex trafficking, so it opened a lot of opportunities for me. Ki, now this is the time when I can also start something of my own. I have those qualities. Okay. So I think emotions और कुछ experiences ऐसे factors रहे हैं जिस कारण I could start बचपन, but nothing more than that. Okay. So what caused your paradigm shift? वो ऐसा कोई moment था या कोई ऐसे incident था that you started this? Right. So I wouldn't say कि एक moment था जिसके कारण सब कुछ हो गया. There were a series of I would say conquering events. But एक ना threshold point था which happened in 2018, which I usually tell everyone whenever I talk to anyone out there. So there was this case of Kathua rape case, trigger warning for anyone out here. So Kathua rape case which happened in 2018 January में हुआ था. So it was a very brutal, though all the cases are brutal, but the point is, see, it came out in the news, so it was in front of all of us. So वो बहुत hit किया था मुझे when I was in college. And Mhm. I remember, I was not able to sleep for many nights, just for the reason कि आज WhatsApp status डाल दिए, आज opinions डाल दिए, but ये चीज तो दोबारा होगी.
So that thought was stopping me for getting a sleep. So Mm-hmm. I wanted to do something for me, like for me as in so that I could sleep. That was a simple motive. जो अगर मैं आपको बिल्कुल ट्रुथफुली बताऊं, that I wish I can do something for children out there ताकि मैं रात को सो पाऊं. So that's how I started a venture, where I worked upon child sexual abuse. And उस वेंचर में कुछ चीजें थोड़ी सी इंटरनली खराब हुई थी, कुछ मेरी फॉल्ट थी, कुछ फॉल्ट फ्रॉम द अदर पीपल. But then finally I started बचपन in January 2020. But if you ask me personally, I have this experience of 4 years के आसपास का बच्चों के साथ काम करना. Okay. So that Okay. was my paradigm shift. Okay. तो अभी जैसे आपने बताया that you started this, so this is not an easy field to work with, right? I mean, True. आप निकल जाओ, ठीक है, नारेबाजी या whatever, or get together या True. groups, all that. Like, True. what were the obstacles and challenges to put this together? मतलब did you True. आपने सिर्फ अकेले ये शुरू किया या आप कोई और भी लोगों True. को साथ लेके चले? True, true. So it has been very difficult, very difficult. Especially a boy working on child sexual abuse, it becomes even more difficult because लोगों को आदत है कि ऐसे कॉज पे तो लड़की शुरू कर सकती है, लड़के ने कैसे किया. So they feel कि कुछ और साइकोलॉजी तो नहीं है दिमाग में कि कुछ और बेनिफिट लेना होगा या कुछ और होगा. और इन एंड प्लस दे फील कि लड़का भी स्टार्ट कर सकता है, इसके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है. देन हाउ कैन ही स्टार्ट फॉर अ कॉज, हाउ कैन ही फील फॉर द पीपल आउट देयर. सो ये तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट देयर वर मेनी लाइक फैमिली इश्यूज वर डेफिनेटली देयर. इट्स अ डिफिकल्ट वर्ल्ड आउट देयर इफ यू वांट टू डू समथिंग रिगार्डिंग दीज कॉजेस. And not just family issues, team banana. So when I came to my hometown, it was very difficult for me to form a team. Okay. Because when you're in a college, it's easy to make a team क्योंकि आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, people from different societies. But when I came to my hometown, that was the last year of my college, and मेरा hometown और college are in different cities. So I had to go in those colleges जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं था. So fixing those people and getting them on board. और अकेले जब आप स्टार्ट करते हो तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट कंसिडरिंग योर ग्रुप ऑफ 4 to 5 people. तो आप Right. स्टिल जाओगे, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. ओ यू ऑलरेडी हैव पीपल, नाइस वर्क. बट अगर अलोन हो और ज्यादा काम भी नहीं है तो पीपल क्वेश्चन योर लॉट. So to Right. summarize, I had difficulties in handling my family, handling my own traumas because मेरे पास पहली बहुत सारी survival stories आती थी लोगों की. So I had to handle that as well. Then building a team, sustaining a team, and then working out in this cause as in to go to government schools and convincing them, because a boy going to convince schools कि आपके स्कूल की लड़कियों को हम सेक्स एजुकेशन देने वाले हैं, अरे लड़की Finish. लेके आओ, how can you do Yeah. that? So Yeah. a lot of difficulties on everyday basis, but these were certainly the starting of it. Okay. Yeah. So tell me, what is now Bachpan all about? Like Bachpan Save the Innocents. अभी आपके कितने सारे लोग हैं आपके टीम में, and what exactly do you do in Bachpan? हाँ जी. तो अभी बचपन इज अ रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट. ठीक है, हम लोग रजिस्टर्ड हैं एंड 2 साल हो गए हमें काम करते हुए, मोर देन 2 years. वी आर टीम ऑफ मोर देन 80+ वॉलंटियर्स. एंड अभी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं अप्रैल में जिसमें वी ऑलरेडी हैव मोर देन 110+ वॉलंटियर्स. एंड ये 110+ वॉलंटियर्स आर डिफरेंट entirely from the team. So those are 2 different segments. And if I talk about बचपन, हम लोग 3 segments पे काम करते हैं. So the first segment is sensitization program. The second segment is IBY box. The third segment is hope. तो जो पहला सेगमेंट है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, उसमें सारे के सारे प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो वी हैव रफली 15 डिफरेंट प्रोग्राम्स. सारे के सारे प्रोग्राम्स आर डेफिनेटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन एंड दे वेरी फ्रॉम एज टू एज ग्रुप. जैसे कि वी हैव सेफ एंड अनसेफ टच का, वी हैव एडोलेसेंस का, वी हैव सेक्सुअल कंसेंट का, we have digital well-being का, we have cyber safety का, we also have for gender equality and sexuality का हम लोग ट्रेन कर रहे हैं. then youth के लिए courses हैं, POCSO Act के लिए we also train law students, medical officials के लिए workshops हैं, parents के लिए. so combined we have 15 programs, all are inclined towards a single vision of child sexual abuse prevention. the reason is कि हम सबको पता है कि अकेला बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा. we all need to be trained for certain situations, right? So it becomes a responsibility कि सब लोग अपने अपनी डोमेन में ट्रेन रहे.
So this is the first thing we do, and till now, as you told, we have sensitized approximately 8,800 plus people through 190 workshops. So yeah, that is the first segment. Second segment is the IBY box. So IBY box is simply I believe you box. ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट ही इसलिए किया गया था बिकॉज देर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर अलोन इन देयर जर्नी and they cannot vent out their emotions, they cannot vent out their stories because they feel कि शायद सामने वाला समझेगा नहीं. Yeah. So we created a small platform, anonymous platform on our Instagram as well. तो किसी को कभी भी अपना कोई स्टोरी शेयर करना है, they want to share their trauma of child sexual abuse, वो वहाँ पे भर सकते हैं. And then our designing team and content team tries to rectify the content, वो as it is उसको put कर देते हैं on different social media platform. द इम्पैक्ट इज कि दीपशिका अगर आप कोई स्टोरी देखते हो एंड यू फील यार दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, या फिर ये तो बहुत हिम्मत वाली बात है कि उसने लिख भी कैसे दिया, सो देन यू विल एंगेज विद इट. और जब आप एंगेज करते हो ना, इट्स अ साइन कि यू आर सपोर्टिंग द पर्सन. एंड जब सपोर्ट मिल जाएगा तो और क्या ही चाहिए होगा. राइट. सो वी हैव शेयर्ड टिल नाउ मोर देन 80 प्लस सर्वाइवर स्टोरीज, और आई थिंक अभी 90 से 100 के बीच में एंट्रीज आ रखी हैं. सो एक एक करके हम शेयर करते हैं. बट येस, इन 80 स्टोरीज में से वी हैव गॉट एटलीस्ट आई थिंक 10 से 12 ऐसे रिस्पॉन्सेज आए हैं जब लोगों ने बचपन के अकाउंट में दे हैव रिप्लाइड टू अस कि इट फील्स रियली ग्लैड एंड इट फील्स एन डोर हैज ओपन फॉर अस कि जब हमने स्टोरी शेयर की और लोगों ने एंगेज किया. तो उसने और एम्पावर किया, अरे लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है तो करते रहना चाहिए. So this is IBY box. And then the third platform is Hope. The full form is Hold On, Pain Ends, and I love the full form. Me too. Yeah, so ये एक सपोर्ट ग्रुप है. सपोर्ट ग्रुप इस चीज के लिए है कि IBY बॉक्स में आप एक बार अपनी कहानी लिख दोगे, that will come on the platform. But what if you want to communicate with people? So then we created out the support group on Discord. It's a anonymous support group जो सिर्फ survivors of child sexual abuse के लिए है. So if anyone out there is a survivor of CSA and they feel कि मुझे एक ऐसी community चाहिए जिस community में ना सिर्फ मेरे जैसे लोग हों, because I feel कि वो लोग मुझे समझ पाएंगे because they have a similar experience. Right. तो वो support group उन लोगों के लिए. So अब उस सपोर्ट ग्रुप में वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग वर्चुअल मुलाकातें करते हैं, हम लोग लिसनिंग सेशंस करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट करते हैं. 24/7 एक म्यूजिक का चलता रहता है पूरा टाइम. कोई कभी भी ट्रॉमाटाइज है तो वो सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं. देन वी हैव मीम्स का पेज है, रोज एफर्मेशन जाती हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन. सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वहाँ पे कि जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हील करेंगे, कोई अकेले नहीं करेगा, मिल के करेंगे. एंड देन फाइनली विल हेल्प मोर पीपल to grow this platform out and उनको भी heal करें. So yeah, this is the motive of that. तो ये 3 छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, and that's how it is. ये छोटा नहीं है. I mean, I am telling you, I think you have got it covered from all angles. Like you said, you were, sensitizing all departments, and then, the IBY box, and then the Hope. I think that is great because, okay, हो गया, बोल दिया, अब क्या, so I think that is crazy. So ये सब चीजें आपके बायो में है, इनकी सब links for people to. Correct. सब कुछ बायो में है और वेबसाइट पे भी सब कुछ है. Okay, so like when you talk about sex eds, and I'm sure जब आप schools में जाते होंगे कि हमको sex education courses करने हैं, तो उन लोग बोलते होंगे हमारे पास है. So like how different, because I remember the sex educations happening in my time in our school. It was, I don't remember anything. It was a giggle, it was a laugh, and it was, I think, 1 hour ka khatam, and we were just shown like acha sanitary pads, and I think it was a girls' school, so there was nothing. I can't remember. So how different are your courses from jo already hai, and could you tell us a little bit about that? Correct, definitely. So अगर हम if you have to differentiate, दो तरह से differentiate कर सकते हैं. अगर हमारी वर्कशॉप्स को हम डिफरेंशिएट करें जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो वो तो बहुत ही डिफरेंट है. लाइक इट इज तो टोटली ऑपोजिट थिंग. एंड अगर हम डिफरेंशिएट करें कि हमारी वर्कशॉप्स जो लोग बाहर वर्कशॉप्स दे रहे हैं, लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस इफ देयर आर आउट देयर वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक, तो उनसे कैसे डिफरेंस है वो भी डिफरेंस है. सो आई टेल यू बोथ द डिफरेंसेस. तो स्कूल में तो प्रॉब्लम क्या है कि पहली बात तो वो लोग गुड टच बैड टच यूज करते हैं, तो यहीं पे ही
things go totally wrong apart, because good and bad जो है, these are relative words. इट्स सिंपल कि अगर हम गुड टच में कैसे समझाते हैं, दीपिका, हम समझाते हैं कि अगर आपको आपकी बॉडी पे कहीं भी छू रहा है, आपको गुड लग रहा है, दैट इज गुड टच, और बैड लग रहा है, दैट इज बैड टच, सिंपल. तो बहुत ही सिंपल सा चीज है कि अगर आप किसी भी लड़की को, एनी पर्सन आउट देयर, आप उनके वल्वा वेजाइना पे टच करोगे, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि दे माइट एंजॉय इट, बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल रिएक्शन. तो इसके साथ तो वो गुड टच हुआ, बट इज इट गुड टच? इट इज अनसेफ टच. तो पहला तो यहीं पे ही चीजें खराब हो जाती हैं. आई हैव सीन मेनी पीपल, आई नो मेनी पीपल, आई हैव सीन सो मेनी स्टोरी जिसमें लोगों ने बोला है कि हमें वेजाइना पे टच किया था और हम उस टाइम पे एंजॉय कर रहे थे, और बाद में आफ्टर मेनी इयर्स दे फील कि अब हमें गिल्ट है कि वो तो गलत था, कि हमें तो अच्छा फील हो रहा था, तो क्या हमारी वो गलती थी? नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो बायोलॉजिकल रिएक्शन था, पर वो गलत था, पर तुम्हें किसी ने बताया नहीं. सो यही पे चीजें दे टोटली फॉल अपार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल. Right. And Right, so, and yeah, go on. yeah, continue please. नहीं नहीं, मतलब वही. So then do the schools accept आप लोग का, like do you have to, what is the, मतलब आप लोग का वो challenges कैसे है, मतलब आप जाके Yes. बताओगे तो do schools accept you easily, or is that another So challenge होते हैं? yes, तो स्टार्टिंग में देयर वर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, अभी भी रहते हैं. तो स्टार्टिंग में आई रिमेम्बर जब वर्कशॉप दिए थे, तो बहुत, आई थिंक आई वेंट टू 20-25 स्कूल, एंड उनमें से एक ने अलाउ किया था, और ये सारे गवर्नमेंट स्कूल थे. तो वहां पे वर्कशॉप दिया था, एंड देन हमने ना जैसे जैसे वर्कशॉप देना शुरू किया, वी स्टार्टेड टेकिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एलओएस देने शुरू किया हमने स्कूल से. Okay. तो नाउ वी हैव Okay. अप्रोक्सीमेटली 25 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. तो अभी क्या Okay. होता है कि अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो द फर्स्ट थिंग इज वी टेल देम कि व्हाई इज दिस थिंग इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद हम उन्हें लेटर रिकमेंडेशंस के थ्रू ऑल्सो वी ट्राई टू कन्विंस देम कि ये देखिए, सिर्फ आपका स्कूल नहीं है, 25 स्कूल है जिन्होंने देखो अच्छे से लिखा है कि ये वर्कशॉप बहुत अच्छी है, और फ्री में तो है, तो करवा लो, क्या इशू है. सो Correct. बाकी उसके अलावा यू नो वी ऑल्सो गिव देम, जैसे मैंने आपको बताया, हम स्टिकर्स देते हैं बच्चों को, पेन्स देते हैं, हम अभी पोस्टर्स उनके लिए बनाने वाले हैं बच्चों के लिए. वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर द बैचेस एंड कॉमिक बुक्स, एनिमेशंस, तो ये सब बनाने वाले हैं. एंड प्लस वी हैव ऑल्सो पुट अप द परमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कि वहां से हम डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कूल में वर्कशॉप कर पाएंगे, हमें परमिशन की नीड भी नहीं पड़ेगी. बट या बट चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं, अभी भी रहते हैं. डिफिकल्ट क्यों है दीपिका? डिफिकल्ट इसलिए है कि सीएससी के लिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर स्कूल में जाओगे तो पहले तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि सीएससी प्रॉब्लम है. है. तो जब वो समझेंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा ये सॉल्यूशन है. Right. I know everybody turns a blind eye. हाँ हाँ, वो तो Yeah. सब कुछ कारपेट के नीचे डाल दो और चुप बैठो और कुछ नहीं होगा, kind of a thing. Yes, you're so right. Correct. Yeah, go on. Correct. Yeah. तो ये challenges रहते हैं. उसके अलावा तो बाकी तो workshops we on a daily basis now, अब चीजें बेटर हो गई, बट स्टार्टिंग में ये सब challenges डेफिनेटली थे. Okay. So जब से आपने शुरू किया है बचपन, what was the most heart-wrenching incident या story जो आपने सुनी है? Obviously not taking names and everything. So what was something that really shook you? Of course, after the Kathua rape case. Correct. There are many. There are so many, I cannot tell you. There are so many. अगर मैं वर्कशॉप्स की, तो आई रिमेम्बर जब हमने पहला वर्कशॉप दिया था मैंने, एंड आई केम बैक, तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो एक करेज मिला था कि दोबारा से स्टार्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई वाज अलोन एट दैट टाइम और मुझे एक वर्कशॉप देना था. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ वेरी स्पेशल मोमेंट. देन सेकेंडली व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज ऑफ पेक कॉलेज में, जब मैं टीम बनाने गया था, एंड I could get few people from there, and वहां से हमारे पास लोग आए थे इन द टीम. दैट वाज अनदर गुड मोमेंट फॉर मी. एंड अगर मैं बात करूं बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स की, तो दे आर अबाउट सर्वाइवर्स. मुझे याद है एक बच्ची थी, शी वाज फ्रॉम हरियाणा समवेयर, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द विलेज नेम, एंड उसका बहुत ही ट्रिगरिंग स्टोरी था इन अ केस की, शी बिलोंग टू अ विलेज, एंड उसके साथ उसके कजन ने ही दैट पर्सन हैड सेक्सुअली अब्यूज्ड हर, एंड उसकी फैमिली को पता था, बट उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी बिल्कुल भी, एंड वो रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज एक विलेज था, तो वहां पे पुलिस वाले उसके पेरेंट्स को जानते थे. Oh my God. तो शी कुडंट रिपोर्ट इट. उसकी फैमिली को पता था, दे डिडंट सपोर्ट हर.
शी कुड नॉट कॉल मी बिकॉज फोन अलाउड नहीं था, बिकॉज छोटी सी बच्ची थी 7th-8th क्लास की। एंड प्लस अगर उसकी काउंसलिंग या कुछ कराएं तो वो भी पर तो कुछ इश्यू कुछ नहीं कर सकते थे। आई कुड ओनली चैट विद ऑन फोन। एंड आई रिमेम्बर शी यूज्ड टू सेंड मी तट की फोटोज, शी यूज्ड टू सेंड मी, आई स्टिल रिमेम्बर। देन शी यूज्ड टू टेल मी कि भैया अभी मैं उनसे मिल के आई हूँ, मेरे कजन से, और वो मुझे ऐसे, ही वाज लुकिंग एट मी इन सच अ वे कि मुझे दूर से गंदा फील हो रहा था, बट आई कैन नॉट एस्केप एट दैट मोमेंट। तो शी यूज्ड टू टेल मी अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स कि मेरे को सुसाइड करना है, ये करना है, वो करना है। एंड ये आई थिंक उसकी 8th या 9th की बात थी। एंड अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है, 1 महीने पहले उसको मुझे मैसेज आया कि भैया आई केम बैक फ्रॉम माई हॉस्टल। वो +1 में हो गई है, तो शी वॉज अवे फ्रॉम हर होम। तो उसने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं +1 में अब हो गई हूँ, और मुझे याद है वो 1.5-2 साल कैसे निकला, आपने कितना हेल्प किया और चीजें बेटर हो गई, एंड आई मीन अ मोर बेटर स्टेट, मैं हीलिंग कर पा रही हूँ, वो सब। तो दैट फेज कि वो रोने वाली इमोजीज भेजना उसका मुझे, प्लस दिस फेज व्हेन शी वाज सेंडिंग मी हार्ट्स एंड हैप्पी फेसेस, वाज अ रियली मूविंग मोमेंट फॉर मी। Wow. एंड ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक देयर आर मेनी मोर पीपल जिनके तरह ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आई हैव सीन देम ग्रो सो मच दीपशिका की, मतलब ऐसे कट्स एंड ऑल दीज थिंग्स से लेकर व्हेन दे आर हेल्पिंग अदर पीपल। सो Oh, ऑल दोज हैव बीन रियली रियली ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर मी। तो ये सब मोमेंट्स ना बाकी प्रॉब्लम्स को वो शैडो कर देते हैं। correct. That is so this. तो And has there been any story like that, Rahul, जहाँ पे आपकी और आपकी team has been able to avoid a certain abuse? I mean, you know, like क्योंकि आपने ऐसा education दिया या you made people aware about whatever. So have you करेक्ट been able to save anybody करेक्ट before करेक्ट the करेक्ट abuse? करेक्ट। ऐसा केस अभी तक हमारे पास आया नहीं है जहाँ पे हमने रेस्क्यू किया हो। एंड हम स्कूल से कांस्टेंट टच में रहते हैं। तो वी नो दैट स्कूल्स हैव टोल्ड अस कि सेशन के बाद बच्चों ने बताना शुरू किया है कि कुछ ऐसा ऐसा पहले मतलब हुआ है। तो दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इट, एंड नाउ दे हैव टोल्ड देयर टीचर्स कि अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब सही नहीं है, तो आगे होगा तो मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वी हैव गॉट ऑल दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज। एंड प्लस हम लोगों ने हीलिंग में हेल्प किया है बच्चों की, जो कोई CSA के सर्वाइवर जो 18 अबव हैं या फिर जो बच्चे हैं, वैसे हेल्प किया है। बट इफ यू आस्क मी, रेस्क्यू करने वाला अगर कभी हुआ भी हो तो वो हम तक नहीं पहुंच पाया है। Don't know. या You don't know. दैट Yeah. हैज बीन पॉसिबल। बट हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ हो तो आई एम रियली ग्लैड। बट हाँ, अदर सोर्सेज ऑफ हेल्प डेफिनेटली रहे हैं, या होपफुली। Right. Right. So tell us a little bit about the POSCO Act and matlab ki I just saw forward one of your not forward one of your post on Bachpan. So करेक्ट tell us a little bit about the POSCO Act. करेक्ट। सो जो पॉक्सो एक्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो मुझे ना पॉक्सो से एक बड़ा, आई रिमेम्बर अ स्टोरी। आई वेंट टू अ स्कूल नियर माय प्लेस। इट्स अ प्राइवेट स्कूल, काफी इलाइट स्कूल है। तो मैं वहाँ पे उनसे बात करने गया था 1.5-2 साल पहले परमिशन देने के लिए। एंड आई हाँ. रिमेम्बर आई सॉ पोस्टर इन द स्कूल। मैंने बोला कि हम लोग चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करने वाले। तो उन्होंने बोला वो देखो पॉस्को का वो लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। So I told them, मैम कि पॉस्को नहीं पॉक्सो होता है। So the hysterical part here is, नहीं, I'm not talking about you, see I'm not talking about you, I'm just talking about the school की वो लोग they, and this is the reality दीपशिका, कितने स्कूल एस्टैब्लिश करते हैं कि वो एक टर्मिनोलॉजी को सही नहीं बता रहे हैं, they are saying कि हमें पूरी वर्कशॉप आती है। So this is the Correct. unfortunate part. But हाँ, coming back to POXO Act, तो POXO Act होता है Protection of Children from Sexual Offences Act 2002। Okay. Okay. पॉक्सो एक्ट बनाया ही बच्चों के लिए गया था, जिसमें अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है तो दैट विल कम अंडर पॉक्सो एक्ट। एंड देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पॉक्सो एक्ट को लेकर। तो इफ आई टू टेल यू कि जैसे कि बच्चों की हेल्प के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, ठीक है, Okay. जो बनाया Okay. गया है। देन Okay. अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज होता है, देन द उसके मेडिकल कंपेंसेशन का देखना, या उसकी जो मेंटल हेल्थ खराब हुई उसकी कंपेंसेशन का देखना, काउंसलर्स प्रोवाइड करना, या फर्स्ट मेडिकल एड फ्री में देना, बच्चे के एजुकेशन का आगे देखना, वो सब पॉक्सो ध्यान में रखता है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है सिनेरियो क्या है कंट्री में, तो नॉट एवरी प्रॉमिस इज बीइंग डिलीवर्ड, बट जितना पॉसिबल हो पाता है। एंड देन देयर आर डिफरेंट राइट्स एज वेल, क्योंकि चाइल्ड लाइन नंबर जो है वो 24/7 होता है।
So all these, are extended helps of POXO. But majorly जो POXO कहता है, POXO says कि there are 6 different kind of crimes in the POXO Act. तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको बोलते हैं फिजिकल वर्बल विजुअल, कि किसी भी तरह का फिजिकल क्राइम अगर बच्चे के साथ हो रहा है सेक्सुअल ऑफेंस में, जैसे कि आपने बच्चे को इस तरह से टच किया, वो अनकंफर्टेबल है, तो दैट इज अनसेफ टच, तो द चाइल्ड कैन रिपोर्ट. अगर आपने पेनिट्रेशन किया है बच्चे के साथ, दैट टू इज अगेन, हम बोल सकते हैं उसे व्हाट यू से इन लेमन लैंग्वेज रेप बोलते हैं हम उसे, बट अगेन दैट इज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. अगर वही असॉल्ट कोई ऐसा इंसान कर रहा है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और ट्रॉमा बढ़ जाएगा, जैसे कि योर फैमिली मेंबर्स, राइट, the people who have been assigned to take care of you, like your medical people, your police officers, your extended family, or what do you say, nurses, और या फिर एक की जगह 2 लोगों ने अब्यूज किया है, गैंग रेप हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. एग्रीवेटेड वर्ड का मतलब यही होता है, ठीक है. तो आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सिंपल सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट. आपका सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट में डिफरेंस होता है. हरासमेंट इज बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, वर्बल विजुअल, और असॉल्ट होता है पूरा का पूरा फिजिकल. एंड ये 5 हो गए. देन फाइनली पोर्नोग्राफी, किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व करना, उसे पोर्नोग्राफी दिखाना, उसे सेंड करना, ये सब चीजें. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्राइम, मतलब जितना भी आप अम्ब्रेला सोच सकते हो ना बच्चों के साथ क्राइम का, वो सब पॉक्सो में कवर होता है. कुछ लूपहोल्स डेफिनेटली है, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ अब्यूज होता है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है उस चीज के लिए. ओके. नाउ व्हाट इज मैंडेटरी रिपोर्टिंग? जैसे मान लो दीक्षिका, जस्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने किसी नेबरिंग में किसी बच्चे को देखा, उस बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है, ये आपको पता है, राइट, बट यू ऑल्सो नो कि अगर मैं रिपोर्ट करूंगी उस बच्चे के लेकर कि मेरे नेबर में बच्चे के साथ रिपोर्ट ये इशू हो रहा है एंड पुलिस घर पे आ जाएगी, तो दैट फैमिली पॉलिटिकल इतना स्ट्रांग ना कि वो क्या करेगी, वो पुलिस को भगा देंगे इसे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. एंड प्लस क्या होगा कि वो उस बच्ची को और ट्रॉमाटाइज करेंगे, हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस करें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस बच्ची ने रिपोर्ट किया है, राइट. तो दिस विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू कि मैं रिपोर्ट नहीं कर सकती, बट अब मुझे पता चल गया है, तो अगर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो आई विल बी इन अ बिग ट्रैप कि मैंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि लॉ नहीं समझेगा ये चीज इमोशनल. करेक्ट. प्लस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि जैसे चाइल्ड हमारी कंट्री में समन हुई 18 बिलो, तो अगर एक 17 ईयर्स की लड़की और एक 19 ईयर्स का लड़का रिलेशनशिप में है, एंड दे गो फॉर सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप, एंड कंसेंट था, प्रॉपर कंसेंट था, तो उसके बाद क्या हुआ, दे हैड दिस फिजिकल रिलेशनशिप एंड बाद में 1 साल बाद ब्रेकअप हो गया. नाउ इफ गर्ल गोज एंड रिपोर्ट द पुलिस कि इस लड़के ने मुझे रेप किया है, राइट, शी वाज 17 एंड द बॉय वाज 19, या फिर वो पुलिस के सामने यही बोल दे कि वी वर इन्वॉल्वड इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद माय कंसेंट, स्टिल वो रेप माना जाएगा. व्हाई? बिकॉज कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 18 इज नॉट वैलिड इन आवर कंट्री. 18 से नीचे कोई बच्चा कंसेंट दे, उसे माना नहीं जाता. तो ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं जहाँ पे देर आर पीपल, कपल्स, बच्चे होते हैं 16 से 18 ईयर्स की एज में होते हैं, लड़की 16 के लड़का 18 का है, रिलेशनशिप में, दे हैड फिजिकल रिलेशनशिप, एंड बाद में फैमिली के प्रेशर से लड़की को रिपोर्ट करना पड़ा, लड़की को जेल हो गई, क्योंकि वो क्या हुआ, वो हुआ आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसकी पनिशमेंट होती है. सो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बट ये सभी दिखते हैं थिंग्स को. Okay, so basically the helpline number is 1908, is that right? It is simply, अगर किसी को बताना हो, it's reverse counting from 10 to 8. 10, 9, 8. 10, 9, 8. Okay, 10, That 9, is the 8. formula. Yeah. Okay, all right. So tell us, like when the pandemic was going on, or when it was the first wave, second wave, there came reports where the sexual abuse hai, and that went off, the numbers went up like crazy. So how did you guys, what was the scene at Bachpan, and how did you guys have to, correct, what did you guys do? Correct. So pandemic hit us in a different way because I started making a team in the month of, at the end of February. एंड तब मैं बस जाके कॉलेजेस को पिच कर रहा था, सिर्फ 5-6 लोग आए थे, और तभी अप्रैल में या मार्च के एंड में पेंडेमिक हो गया. तो अब टीम तो बनी नहीं, काम कैसे करें, दैट वाज द मेजर चैलेंज.
एंड देन वी वर सीइंग दिस केसेस कि कितने सारे केसेस बढ़ रहे थे, तो उसका रूट कॉज देखना शुरू किया क्यों बढ़ रहे हैं. तो आई डिवाइड दिस आंसर टू 2 पार्ट्स. तो पहले हमने टीम कैसे बिल्डअप किया. ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल गई, बिकॉज नाउ मैं अपनी सिर्फ सिटी में ही नहीं, मैं और भी जगहों पे आई कुड गिव अ लॉट ऑफ वर्कशॉप. करेक्ट. तो दैट इज हाउ अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप. हम लोगों ने सोशल मीडिया थोड़ा एस्टैब्लिश करना शुरू किया वर्ड ऑफ माउथ से. प्लस पीपल वर सो बोर्ड एट सिटिंग एट होम, दे वांटेड टू इन्वॉल्व इन सम वेंचर्स. तो हमने एक वैसा अलाइनमेंट देना शुरू किया बचपन को कि लोग उस साइकोलॉजी से टीम में आना शुरू हो. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड थिंग्स इन आवर ओन वे. प्लस जो आपने बोला, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन कि केसेस बढ़े क्यों पेंडेमिक में. Unfortunately, CSA becomes more complex because 95% of the time the culprit is someone known to a child. Right? Yeah. It can be, मतलब अगर 10 लाख केस हो रहे हैं तो उसमें से 9 लाख अराउंड 9,50,000 उसके आसपास तो नोन लोग ही कर रहे हैं. तो राइट. अब उसमें है कि जब सब लोग एक घर में बंद हो गए, so now people are frustrated. So I'm just telling you a psychology of someone who can be a potential abuser. तो कोई पोटेंशियल एब्यूजर क्यों होता है, इसके ऊपर भी वी कैन टॉक अबाउट. कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दीपिका, दैट नो वन इज बोर्न विद अ साइकोलॉजी टू अब्यूज समवन. सब लोग बिल्कुल बचपन से इनोसेंट होते हैं. यू टेक आउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई मतलब सबसे वर्स्ट क्रिमिनल निकाल लो, वो भी जब पैदा हुआ होगा दैट पर्सन वुड बी इनोसेंट. So the incidents which happen in our childhood, the psychology, the environment, that molds us to become a criminal or a culprit. So अभी जब pandemic था तो there were people out there who might be potential abusers and they were frustrated जो चल रहा था. So उससे वो चीजें catalyst बढ़ गया और ज्यादा, right? And I would not say this is the right reason, but वो हुआ. And उससे बहुत सारे cases भी बढ़ गए CSA के, because people were stuck at home and क्योंकि नोन लोग कर रहे हैं तो इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कॉम्प्रिहेंड कि ये तो अपना है, ये लव है या फिर ये अब्यूज है. देन मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. थ्रेटन्स बहुत सारे आते हैं बच्चे को, फैमिली से लेकर साइकोलॉजिकली ग्रूमिंग बहुत होती है बच्चों की. तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो बच्चा नहीं हैंडल कर पाता. तो बहुत सारे केसेस बढ़ गए. सो दिस वाज आल्सो चांस अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम लोग कुछ ऐसी वर्कशॉप्स निकालें बच्चों के लिए जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट दिस स्टफ एज वेल. तभी हम लोगों ने ये सब, हम जब बात कर रहे थे साइबर ग्रूमिंग की और एडोलेसेंस की, ये सब वर्कशॉप निकालने हमने भी तभी शुरू की. Okay. Yes. So that is how pandemic this. Okay, and tell us like so all this like so you're a very young person, you were just 23 as we were speaking, you have a day job and you have Bachpan as your I think pura time. So what are you doing, like मतलब ये आप अपने बारे में बताइए, like does this all these stories and everything, does that affect you, and do you feel that you want to be here full time, or what is it like? Let's tell us a little bit about your mental psychology or whatever you're going through right now. Correct. So मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही अप डाउन रहती है वैसे. अप डाउन नॉट इन दैट एक्सट्रीम केस, बट रहती है बिकॉज ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस. बिकॉज आई एम, जैसे आपने बोला, आई एम प्लानिंग इन कमिंग टाइम टू डू बचपन फुल टाइम. सो फाइनेंशियल चीज़ों को देखना है. प्लस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंजाबी फैमिली जिनकी मेंटालिटी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. देन आई हैव अ डे जॉब जो 9 घंटे की चलती है. एंड एटलीस्ट आई नीड टू गिव माई प्राइम टाइम ऑफ 5 से 6 घंटे एटलीस्ट इन बचपन. तो रोज इतना वर्किंग तो मेरा रहता है, जो आई एम टेलिंग यू 16 घंटे तो रहता है एफिशिएंट. तो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दैट. और उसके अलावा माई डायरी कीप्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. तो मैं एक छोटी सी डायरी रोज बनाता हूँ जिसमें 20-25 काम होते हैं. एंड आई गिव माई सेल्फ वेरी गुड परसेंटेज कि आज इतने काम हुए एंड देन आई पास ऑन द वर्क टू द नेक्स्ट डे. तो आई एम बेसिकली वेरी डिसिप्लिन पर्सन इन दैट सिनेरियो. मैंने अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किया है, बहुत ही टाइमली टाइम किया है कि चीजें बिल्कुल सही टाइम पे शुरू हो, सही टाइम पे खत्म हो. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेचर एज वेल. आई फील दैट अ लॉट ऑफ माई थिंग्स गेट हील्ड इन नेचर. तो मैं बहुत ही सिंपल लाइफ, और जैसे ये क्लब्स वगैरह, शोर और ये सब बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं यूजुअली आई जस्ट टेल यू कि मैं नॉर्मली पजामा या शॉर्ट्स में रहता हूँ ऑलमोस्ट 24/7 डे, और ऐसा कुछ नहीं है. तो
Yeah, that's how I'm trying to incorporate कि मेरा ऑफिस चलता है साथ में, and I do बचपन as well. A lot of discipline, a lot of vision for बचपन, because I know कि ये वाला काम कैसे इम्पैक्ट करेगा बच्चों को, and कैसे this gives me a lot of satisfaction, ये सब मुझे हेल्प करता है. Yeah, I think that's it. But that's incredible, Rahul. Matlab, you're all of 23 and you have accomplished so much in ये इतने से छोटे से time. मतलब right after your college, 4 साल में you have conceptualized an organization. फिर उसके around पूरा team बनाना. Yeah. I think you have about how many people in your team right now? We have around अभी 80 plus volunteers we have. Amazing. And they're all over India, or they are in your city? They are, that is one of the most beautiful parts of बचपन. तो हमारे पास around, if I have to divide कि 9-10 लोग बेंगलोर से हैं, then 5-6 लोग अमृतसर से हैं, then 3-4 हैदराबाद से हैं, then कुछ चंडीगढ़ से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ केरला से हैं. So it's spread out in a kind of a beautiful way. Beautiful. No, that is amazing. So, तो एक तो अच्छा, जैसे आपने बोला ना, I don't have any interest in clubs and all. I'm sure people who are as evolved as you, I don't think you want to be going in shore sharaba. You have so much on your head. You have to, that is incredible. Okay, so tell us, what are your greatest wins for Bachpan? You've already told us a whole lot, but still, like, what are the greatest wins that you feel like, that after having made Bachpan? Right. I'll tell you one of the things which I always wanted to do. So the day I started बचपन and I started learning from my mistakes, मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा थी कि बचपन should be something कि सब लोग सेम लेवल पे काम करें. And when I say the same level, I want that everyone should share the vision of बचपन. कि मतलब कि अगर आज इस लाइफ की, अगर मेरी जगह दीपशिका ये लाइफ 80 मेंबर्स में से कोई और भी ले रहा हो, दे कैन से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैं कह पा रहा हूँ. आई वांट कि इतना विजन क्लियर हो हम सबका, एंड दैट हैज बीन सम वे अचीव्ड आउट. तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि बचपन क्या है, तो पहले सब लोग ये बताते हैं कि बचपन क्यों है, फिर वो बताते हैं कि बचपन क्या है. तो so that kind of makes me feel कि कुछ अच्छा हुआ है कि टीम शेयर्स द विजन. उनको लगता है कि बचपन एक सोच है जो हम स्प्रेड आउट करेंगे. तो अगर मैं एक महीने के लिए आई गो ऑफ समवेयर, तो आई नो दिस मच, आई हैव दिस मच कॉन्फिडेंस इन द एंटायर टीम कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो व्हाट इज द विजन. मतलब अगर उनको कोलैबोरेशन ना भी जाए ना कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के पैड्स बांटने जाना है, तो वो पैड्स नहीं बांटेंगे अंटिल दे नो कि इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कुछ विजन इंक्लाइंड होना चाहिए. दीपशिका, वी नेवर डू अ थिंग जो सीएसए के अलावा कुछ और हो. कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इवन अ लाइव सेशन ऑल्सो, कुछ भी हो जाए, वो सीएसए पर नहीं है तो हम नहीं करते. इट डजंट मीन कि हम टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते. आई हैव अ वेरिड एक्सपीरियंस, बट द पॉइंट इज अबाउट द विजन. कि अब इसको उठाया है तो इसको लेके ही चलेंगे, इसमें ही काम करेंगे. So that vision in the entire team that makes me feel very happy and proud. So good. There is one comment. Bhairavi says our society needs more people like you. So proud of you, proud of the work that you are doing. This is yes, absolutely we need. Yes, and young people, like such young people, I can't even imagine that you're 23 and you're already achieved so much. So my next question was actually going to be, what is your vision for Bachpan, which you also answered, but if you like to add anything to it. Yes, I'll add. So whenever I think about Bachpan, or see, Bachpan is a name. Whenever I think about the cause, I'll just simply generalize it. कि जब भी मुझे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दिखता है, तो I always want कि हर बच्चे को इतनी empowerment हो and इतनी education हो कि उसे समझ आ जाए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको इंटरप्रेट करके they can take an action. Right. वो सिचुएशन ही ना पहुंचे, बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी लॉज इम्प्लीमेंट, नो मैटर हम कुछ भी कर ले, प्रिवेंशन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. we know, unfortunately, जब countries like USA who have a strong development system constitution, उनकी कंट्री में हमारी कंट्री से ज्यादा रेप होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट पर लाख पीपल, राइट? तो दैट इज अब पनिशमेंट कर दो, यू पुट आउट डेथ पेनल्टी, नहीं खत्म होने वाला. तो प्रिवेंशन, ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन इन सच अ वे, उनके राइट्स बताना, प्लस सोसाइटी की मेंटालिटी पे काम करना इन सच अ वे, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग चिल्ड्रन, दे स्टार्ट
accepting their experiences, and पेरेंट्स के पास भी एक टूल किट होनी चाहिए कि अगर बच्चा आ रहा है ऐसा कुछ एक्नॉलेज कर रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है. जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल दीपिका, अगर कोई बच्चा आके बोले कि मुझे मेरे मौसा ने अब्यूज किया, तो इट इज इवन वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्नॉलेज, क्योंकि उनके भी नोन में उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी है. सो वी कैन नॉट ब्लेम पेरेंट्स, बट पेरेंट्स को उस तरह से ट्रेन करना कि उनको स्टेप्स बताओ कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है. सो जब सब लोग ओवरऑल ट्रेंड होंगे इस चीज में, दैट इज हाउ विल बी एबल टू कर्ब द प्रॉब्लम्स हियर. सो दैट इज हाउ आई लुक बचपन, और हाउ आई लुक द सिचुएशन ऑफ सीएसए कि रिपोर्टिंग एंड वो सब तो बात की बात है. द फर्स्ट पॉइंट इज टू मेक दिस कॉज लाइक पीपल को फोर्स करना टू थिंक अबाउट इट एंड टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पे लोग इस बारे में बात करना शुरू करेंगे, एंड देन बाकी चीजें तो बहुत लोग कर ही रहे हैं. Correct. So, Abhi, like you just mentioned, Rahul, that supposing ye case hai, like, now for the viewers right now and everybody that looks at the video later, this is, I think, like every ghar ka kahani that you said, that the child comes and says, so and so relative has abused me. And then the parents have this dilemma that, ab kya kare? So like you said, you have you would want to give a toolkit or something like that steps. So could you tell us what are the steps? Okay, वो जो shame है, वो सब है, और the consequences है वो रहने दीजिए. But if you could tell us the, in short, a thing for the parents. Right, true. So, first of all, I'll state a fact कि there are many less cases, बहुत ही कम cases होते हैं जहाँ पे बच्चा के झूठ बोलेगा. बिकॉज राइट, मतलब इस चीज इतनी यंग एज पे इतने बड़े टॉपिक को लेके झूठ बोलना इज नॉट वेरी मच लाइकली फॉर अ चाइल्ड. सो आई जस्ट स्टेट आउट सर्टेन पॉइंट्स कि अगर कभी कोई बच्चा आके पेरेंट्स को बोलता है, व्हाट कैन बी वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो कैन बी कि बच्चा आके बोल रहा है कि मेरे डैड ने मेरे साथ अब्यूज किया, वो अपनी माँ को आके बता रहा है. दिस कैन बी वन ऑफ द वर्स्ट केसेस, राइट. नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मॉम टू एक्सेप्ट, राइट. तो यहाँ पे मेरा जो साइकोलॉजी रहता है, और हाउ शुड पेरेंट्स हैव अ साइकोलॉजी, दैट यू शुड फर्स्ट ट्राई टू हैव एन एक्टिव लिसनिंग विद द चाइल्ड. क्योंकि हम लोग सब सुनते हैं, बट कितने एक्टिवली सुनते हैं, दैट मैटर्स. So you should be involved into active listening. So you just listen to the child. Second thing, उसी टाइम पे बच्चे को ब्लेम नहीं करना या फिर क्रिटिसाइज नहीं करना कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि झूठ बोल रहा है. बिकॉज यू हैव बेसिकली एंडेड एवरीथिंग बिटवीन यू एंड द चाइल्ड. क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज आपको आके बता रहा है जिसके बारे में शायद उसे नॉलेज भी नहीं है. तो उसने पहले तो बहुत हिम्मत की है. सेकेंड, उसने कहीं ना कहीं से ये इंटरप्रेट किया. थर्ड, उसने सोचा है कि मैं किसको बता सकता हूँ. चौथा, उसने आके आपको बताया है, वो भी वर्ड्स में कन्वर्ट करके, विच इज वेरी डिफिकल्ट. द चाइल्ड हैज ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट स्टेप्स. So your next psychology should be acknowledge the problem. तो आप बस समझो, अगर आपको डाउट है कि मतलब बच्चा बहुत शरारती है या फिर कोई 16 इयर्स का बच्चा बोल रहा है कि वो ऐसी बहुत इश्यूज हैं, तो यू ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दैट ऑन द बैक एंड. बट बच्चे को उस टाइम पे ब्लेम नहीं करना. थर्ड, नो मैटर व्हाट हैपेंस, अगर मान लो बच्चा के झूठ भी बोल रहा है, तो ऐसे झूठ बोलने के लिए मीन्स दैट बच्चा इज काइंड ऑफ समवेट डीलिंग अ प्रॉब्लम विद द मेंटल हेल्थ. राइट. अगर सीए से नहीं भी हो रहा है, बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है. सो यू नीड टू एक्नॉलेज बच्चे की मेंटल हेल्थ. ठीक है. एंड फोर्थ जो चीज है जो आपने सेकंड पॉइंट पे करा, लाइक फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, सेकंड इज एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम, जो आप बैक एंड पे सारा रिसर्च कर रहे हो. बिकॉज अगर फादर ने ऐसा किया है तो देयर माइट बी अ पैटर्न. ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया. देयर माइट बी डेफिनेटली अ पैटर्न. कोई ना कोई डेफिनेटली पैटर्न होगा जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है. थर्ड थिंग इज आपको बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम करना है. फोर्थ इज उससे कॉन्सेक्यूटिवली बात करते रहो, एंड द चाइल्ड kind of feels fear from the father or somewhat like that in a longer term, then you can again start taking actions. और या फिर उसको फादर से दूर रख सकते हो. सो बहुत ही मिनी स्टेप्स हैं टू कीप द बच्चा सेफ, टू कीप द चाइल्ड सेफ. कोई बहुत ही डिफरेंट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. बट द मेन थिंग इज यू शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड, एंड इस तरह से ध्यान से रखो कि हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, बट उसे ये चीज रियलाइज नहीं करवानी है, बिकॉज दैट विल स्ट्रेंथन योर बॉन्ड. और आगे आगे बच्चा बहुत कुछ आपको आगे बता पाएगा.
Correct. That is so well put. I think that kind of rounds up everything. So before we go on to our last question, Rahul, I just want to tell everybody from the Paradigm Shift, please follow the page Bachpan. Everything is in their bio, and I think you guys are doing an amazing job. And everybody that is joining us and seeing us or will see the video after it's uploaded from Bachpan, please follow the Paradigm Shift, because we just bring you very, very inspiring stories like this one, and how Rahul got on this journey and what all he's achieved in such a young age in 4 years, and it's amazing. So Rahul, would you like to give one last message to our viewers? This was very incredible advice, but any other one last message for our viewers? Yes. So the one thing which I always tell everyone out there, क्योंकि मैं assume कर रहा हूँ कि survivors, actually मुझे tag अच्छा नहीं लगता, but और कोई term नहीं है तो मुझे बार बोलना पड़ता है. I mean to say the people who have been victimized with the problems, ये सही हर जगह ऐसे लोग हैं. So, and what you can do best for someone who has been in any kind of trouble or CSA is to listen them actively. मतलब इट जस्ट लाइक कि अगर एनी पर्सन और जिसका सीएसए हुआ है और वो आके आपको बात बता रहा है, तो उसको आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होगी. क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, फॉट इट, एंड देन कम आउट एंड टेलिंग सच एन इंसिडेंट टू यू. मतलब वो बहुत स्ट्रांग है. उन्हें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए. दे आर जस्ट कमिंग देयर टू वेंट इट आउट. तो आपको सिर्फ सुनना है. एंड दिस इज वेयर मेजोरिटी ऑफ अस गोज रॉन्ग. हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई पर्सन आगे कुछ बताता है, वी स्टार्ट गिविंग देम एडवाइसेस, एंड वहां पे वो इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज वो सब कुछ ट्राई कर चुके होंगे. अगर 10 साल बाद वो आपको आगे बता रहे हैं, दे वुड हैव ट्राइड एवरीथिंग. Right. So the best thing you can do for someone is in trouble of CS or any kind of abuse out there is listen them first of all. तो इसको ना हम एक रूल बोलते हैं रैपिड. एक रैपिड रूल होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट कुछ असेसमेंट होता है, देन प्रायोरिटी होता है, देन इंक्लिनेशन होता है, देन कुछ होता है ऐसा, मेरे को याद नहीं. एक साइकोलॉजी होती है. इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि पहले आपको बस सुनना है, ठीक है, अच्छे से सुनना है, देन असेसमेंट करना है प्रॉब्लम का, देन देखना है कि व्हाट ऑल यू कैन डू इन योर प्रायोरिटी. But the major catch is to actively listen and just validate the emotions and things they are feeling. Nothing. Beautiful. Yeah. So this was like an amazing talk, Rahul. Thank you so much. Pleasure. And Prasad says you're awesome. So okay, and everybody that has a question here about regarding child abuse prevention, or anybody who wants to share a story, all the links are in the bio. Bachpan, we will be of course uploading this and tagging Bachpan Save the Innocence, so you guys can go look up their page and go check out the links in the bio. And whatever, if you guys need any kind of help, please you can DM them and they're there. Thank you so much, Rahul, for doing this. I'm really glad. And thank you so much, Dipshika. बहुत ही starting से humble और बहुत ही helpful रहे हो. And we'll take this conversation later on, definitely, and let's connect later as well. Absolutely, and I hope we can be a part of your journey, and I hope we can absolutely help you in any kind of way that we can put in and everything. And I hope you can also monetize all your courses that you're doing, because that will actually help you to make this organization stronger. So guys, look at this space. This is going to be some very, very powerful things happening here. We wish you all the very best, Rahul, and your beautiful team. Thank you so much. Thank you so much, Dipshika. I was glad. Thank you. Bye. Yashpal says many congratulations, young man. All the best. Thank you, Yashpal. Thank you. Take care. Bye-bye.